Hello guys, I welcome you all in our YouTube session. In this session, we are taking important questions of all the topics. केवल कुछ टॉपिक नहीं ले रहे हैं हम लोग. We are going to take the all the topics. सारे टॉपिक जितने भी आपके नीड पर्पस के लिए यूजफुल हैं, हम सारे टॉपिक्स को लेने वाले हैं. So guys, welcome. In the meanwhile, you can post your questions if you have any doubt or anything that you want to talk about. So जो भी आपको बात करनी है आप यहाँ पर लाइव चैट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं. Right guys, so let's start. Before I start, let me give you introduction of Unacademy and about me. वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही हो, काफ़ी सालों से आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है. और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. आई एम शैलेंद्र सिंह राजावत, पॉपुलरली नोन एज द SSR, and I have been teaching from last 17 years. In the journey of last 17 years, I taught thousands of students from 2003 to 2013. I taught IIT JEE. तो मैंने उस वक्त IIT JEE का प्रिपरेशन करवाया for this long tenure. और इस duration में my thousands of students selected in NITs, IITs and top colleges of India and abroad. And after that, after 2003, I started teaching NEET-UG, and from the last 7 years around, I am teaching NEET-UG. So overall, from 17 years, I am teaching the physics, and nowadays I am with the Unacademy. In the meanwhile, this journey of my teaching, I taught in various institutes like Bansal classes, Kota, Vidya Mandir classes. I was associated with the LN also for around 6 years. So guys, this was the wonderful journey. In my journey, I met with the thousands of brilliant mind, and I honored to teach them. Now let me introduce you the few features about Unacademy. Unacademy is all about learning. So you can say that the app of Unacademy is having all the features that a learner must have. They dream about, जो भी चीज़ें वो सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, that thing is available on Unacademy. The best thing that I love at Unacademy is their interface. Their interface is extremely beautiful, right guys? So let's discuss few more things about Unacademy. During the time of COVID, even after COVID, it is always beneficial in the interest of a student to learn from home. So the first feature is you always study from home. So when you study from home, then in that case you always remain under the guidance of your parents. They motivates you, sometimes they scold you. You will get good quality food all the time. You would have good routine. Plus आप जो है वो एक अच्छी कंपनी में बने रहते हैं. Sometime after coming to Kota or some other places, student गलत टेरिटरी में भी चले जाते हैं. That is also beneficial for them. Next thing is unlimited access to the courses. आप जो भी courses join करते हैं उस topic के you have unlimited n number of teachers. आप किसी का भी वो टॉपिक देख सकते हैं. अगर एक का आपको समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, वॉट एवर बी द रीज़न, लैंग्वेज प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वॉट एवर बी द प्रॉब्लम. नेक्स्ट थिंग, यू वुड हैव प्रैक्टिस टेस्ट, लाइक जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होते हैं वो सब चीज़ें अवेलेबल है. बैच कोर्सेज जैसे कि हमारे चल रहे हैं उसी टाइप से बैचेज में कोर्सेज चलते हैं, ठीक है. मेंटरशिप एंड गाइडेंस एग्जैक्टली सेम एज द नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोसीजर. नेक्स्ट इज exhaustive coverage of syllabus. This is very important because we have a team of n number of good teachers. That's why the syllabus coverage always remains good. Next is a regular doubt clearing session. This thing I love the most in Unacademy, because in Unacademy after every 3 classes there would be a
डाउट क्लास। तो जितनी भी 3 क्लासेस होगी उसके बाद में देयर वुड बी अ डाउट क्लास, ठीक है। सो दैट वुड लाइक कि किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो उसी वक्त उस डाउट को क्लियर कर ले, उसको कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा टीचर से उसको डिस्कस कर सकता है। राइट गाइस, आप अपने क्वेश्चंस के साथ में रेडी रहें और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप पोस्ट करते रहें। राइट, नेक्स्ट फीचर इज लाइव टेस्ट सीरीज। आप अगर मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैंने इन दिनों में अरेंज करी हैं, उन स्पेशल क्लासेस को देखें तो आप पाएंगे कि द इंटरफेस इज सो गुड कि स्टूडेंट को मज़ा आ जाता है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, मुझे फॉलो करें शैलेंद्र सिंह राजावत के नाम से, राइट, एंड वॉच माई फ्री क्लासेस, वॉच द इंटरफेस, यू वुड लव इट। नेक्स्ट थिंग इज लाइव टेस्ट सीरीज जैसी होती ही है, एंड PDF मटेरियल। सो वी हैव क्रिएटेड सम टेलीग्राम ग्रुप्स और उनमें हम लोग जो भी कुछ पढ़ाते हैं उनके PDF भी आपको देते रहते हैं। क्लासरूम नोट्स तो होते ही हैं। हमारा आज ही एक बैच स्टार्ट हुआ है ऑफ 11th क्लास, एंड आज हमारी पहली क्लास उसकी हुई है। द रेस्पॉन्स वॉज अमेजिंग, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट आई थिंक उस बैच में थे, राइट। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं कि वो अपने छोटे भाई बहनों को इस बैच में एडमिशन लेने के लिए प्रमोट करें, बिकॉज द टीम इज़ एक्सीलेंट, ठीक है। ऑल गाइज आर एक्सीलेंट और इन सबको आप जानते ही हैं, चाहे हम बात करें AC सर की, हम बात करें SS सर की, और हम बात करें मुझे तो आप जानते ही हैं, हम बात करें NV सर की या CM सर की। सो दिस इज़ अ ड्रीम टीम फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट। इवन इस टीम से तो आपको कोटा में आने पर भी 11th क्लास में पढ़ने को नहीं मिलता। यू नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 3 years टू स्टडी फ्रॉम अस, राइट। सो दिस इज़ अवेलेबल एट अनअकैडमी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो बिगिनिंग से आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे तो आपकी फाउंडेशन सॉलिड होगी। 12th का बैच स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, राइट। एंड 13 यानी क्रैश कोर्स चल रहा है। द रेस्पॉन्स इज अमेजिंग, राइट। thousands of students have taken admission in that, and you would love it, the way by which we are working in that, and we are constantly evaluating the students, we are evaluating the process, and उनकी जहाँ weakness है उनके हिसाब से हम लोग work कर रहे हैं। In that we are taking special classes, theory classes, and all whatever the way we can help student, we are helping through this way, right. Now the question is how to get an academy subscription, and this is very easy guys. You just need to go, need to select your goal, कि what is your goal. Let's suppose your goal is NEET-UG, so आपको NEET-UG select करना है. After that you need to go on get subscription, और वहाँ जाने के बाद में you just need to pay a very what I can say small amount. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रैश कोर्स को कोई करना चाहता है, देन ही नीड टू पे ओनली द $6,000। और आप जानते हैं $6,000 में तो कोटा में आप अगर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से सिटी मॉल अगर 4-5 बार इधर उधर हो जाए या कोटा को भी घूमने की कोशिश करें तो ऑटो रिक्शा वाला ले लेता है, ठीक है। इतने रुपए में तो मेस में खाना भी नहीं मिलता, इतने में आपको यू आर गेटिंग द एक्सेस ऑफ होल अनअकैडमी कोर्सेज, जितने मर्जी पढ़े उतने कोर्सेज के आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड फॉर द गाइज जो कि 11th क्लास में हैं, दे कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 month, एंड 12 month सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हैं 58% ऑफ है, एंड द फीस इज ओनली $30,000, और 30,000 में ऑल द गुड टीचर्स आर अवेलेबल ओवर देयर, राइट गाइज। सो आई थिंक दिस इज नथिंग। इससे ज़्यादा तो कोटा में 12th पढ़ाने वाले 11th पढ़ाने वाले वो लोग ही चार्ज कर लेते हैं। सो दिस इज आई थिंक द चीपेस्ट वन। सो गाइज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 2 years का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दैट इज ओनली $48,000। सो अब कोई भी स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का सपना 2 साल की पढ़ाई केवल जो है 48,000 रुपीज़ में हो सकती है, जो कि मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर चार्जिंग मोर देन 2.5 लाख रुपीज़ फॉर 2 years, एंड फिर रहना खाना पीना सब मिला के इट वुड कॉस्ट अराउंड 5 लाख रुपीज़। सो यू कैन सेव द मनी ऑफ योर हार्ड एंड मनी ऑफ योर फादर ऑल्सो। नाउ the next thing is, you after that you need to go and you need to use the referral code.
यहाँ रेफरल कोड में आप टाइप करेंगे SSR लाइव, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, जिस भी रिलेटिव को बताएं उसको बोलना कि यू नीड टू टाइप SSR लाइव, SSR इज मी, लाइव इज द लाइव क्लास, राइट। भूलिएगा नहीं, इसको टाइप करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो दैट दे आर द थिंग। वन मोर थिंग गाइज, जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल जो कि है अनअकैडमी सैपियन। इसके ऊपर सारे टीचर्स बहुत सारी फ्री क्लासेस भी ले रहे हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स मूव टू आवर टुडेज कंटेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे थे गाइज, लास्ट क्लास में हमने बात किया था इस बारे में कि ऑप्टिक्स के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं किया था। आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को या उस क्वेश्चन को जो कि मुझसे छूट गया लास्ट क्लास में, ठीक है, और आपके नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को लेंगे। सो गाइज, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जल्दी से ट्राई करो। दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन AIPMT 2010। जल्दी से इसको ट्राई करो। इसी बीच में मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, और फिर इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। Stuti is saying कि sir you taught me in MAZJ 3A, very good beta. Rohan is saying okay, I'm already talking in English. I'm taking the session in the both languages, Hindi as well as English. So हर बात मैं 2 बार ही बता रहा हूँ, so that would be clear with you. So don't worry about that, Rohan. And pranam Guruji, Sunish, pranam beta. Okay, so guys, let's start. So this question is about the lenses. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइज, इस पे जाते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमने ऐसा बोला हुआ है कि अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द इमेज ऑफ इंटेंसिटी I. नाउ what we did, the aperture of the diameter d/2 in the central region of the lens is covered with the black paper. तो जब ब्लैक पेपर से आप उसको कवर कर देंगे तो वहाँ से ऑब्वियस बात है लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ द ऑन द लाइट। अब देखो भाई, इफ आई टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ, then we know that by the lens maker formula 1/f is equal to mu minus 1/r1 minus 1 of r2. So if you cover the central region, तो सेंट्रल रीजन को कवर करने पे गाइस न तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स में चेंज हो रहा है, ना ही R1 R2 यानी उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंजेस आ रहे हैं। जब दोनों में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फोकल लेंथ में तो चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब फोकल लेंथ में चेंज होने का सवाल नहीं पैदा होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर या तो सेकंड ऑप्शन बनेगा या फिर आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, जब भी किसी लेंस से, जो मैंने लेंस पहना हुआ है इसके बारे में बात करूं, तो जब इस लेंस से लाइट निकलती है तो लाइट निकलने के बाद में यहाँ कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, दैट एनर्जी क्रिएट्स द इंटेंसिटी। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले हमने क्या किया गाइस, कि पहले हमने एक लेंस लिया। मैं आपको लेंस का टॉप व्यू बता रहा हूँ। लेट्स सपोज दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है, तो आपको ऐसा सर्कुलर दिखाई देगा। तो और इसका डायमीटर हमें दिया हुआ था d। ये लेंस लिया जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ था d। तो जब आप ऐसा डायमीटर लेते थे तो दिस इज द टॉप व्यू। अगर इसी का आप साइड व्यू देखेंगे गाइस, तो जो इसका साइड व्यू बनेगा दैट वुड बी लाइक दिस, जैसे कि हम बनाते हैं क्लासेस में। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ द लेंस। तो जब यहाँ से लाइट गिरेगी तो ये लाइट यहाँ से इस टाइप से निकल रही होगी, ठीक है। तो अगर हमने इसका डायमीटर d लिया है तो जिस एरिया से लाइट पास हो रही होगी वो एरिया यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। दिस वुड बी द एरिया बाय विच द लाइट इज पासिंग। जब इस एरिया से लाइट पास हो रही होती है तो जो इमेज बन रही है उसकी इंटेंसिटी इन्होंने बोली है I। नाउ व्हाट वी डिड गाइज ओवर हियर, व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो हमारा लेंस था, ठीक है, इसके सेंट्रल रीजन को हमने कवर कर दिया एक ब्लैक पेपर से। जब सेंट्रल रीजन को आप ब्लैक पेपर से कवर कर दोगे जिसका कि आपके पास में डायमीटर है d/2, सो व्हाट यू डिड, यू कवर द सेंट्रल रीजन बाय अ ब्लैक पेपर ऑफ डायमीटर d/2। अगर आप ऐसा कर दोगे तो ऑब्वियस बात है वो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। तो अब गाइस जब लाइट जिस प्लेस से पास हो रही होगी वो प्लेस जो होगा वो ये शेडेड रीजन होगा। ये जो मैं यहाँ पे शेडेड रीजन बना रहा हूँ ना, जो मैंने यहाँ पे येलो कलर से बनाया है, केवल लाइट इसी शेडेड रीजन से ही पास हो रही होगी और कहीं से लाइट पास नहीं हो रही होगी।
अब इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, अब ये तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एरिया यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4 में से माइनस कर देंगे ये जो ब्लैक पेपर का एरिया है, यानी आपस में आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 16। अब आप बोलेंगे पाई डी स्क्वायर बाई 16 कैसा है सर, कि भाई डायमीटर डी बाई 2 है ना, तो देन रेडियस वुड बी डी बाई 4। If the diameter is d by 2, then radius is d by 4. तो pi r square, तो d by 4 square, so pi d square by 16. So if I solve this, then I would have pi d square by 4, तो मैंने बाहर ले लिया गाइस, तो मेरे पास आ जाएगा 1 minus 1 by 4. So that would be 3 by 4 of pi d square by 4. Now बचपन में हमारी मैम ने हमें यूनिटरी मेथड पढ़ाया था, याद ही होगा आपको, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड मैम ने क्या पढ़ाया था कि इफ ऐसे समझो कि if when the area is pi d square 4 then intensity is I, then if the area would be 1 then intensity would be this one, ठीक है, then ये वाला एरिया बन जाएगा तो इंटेंसिटी बन जाएगी आपकी 3 by 4 of I, right guys? So your answer would be this one, 3 by 4 of I, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटेंसिटी ये बन गई है। सो गाइज आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूँ, अब मैं वापस से आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, देखता हूँ कितने लोगों ने सही आंसर किया। राइट, मीमांशा मिश्रा हैज़ गिवन द राइट आंसर एंड मोर गाइज हैव ट्राइड। ओके, नो प्रॉब्लम गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप कीजिए, डू इट फास्ट गाइज, इससे पहले कि मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दूँ। हेलो भारती, सो गाइज आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ओके, कुछ आंसर्स मेरे सामने फ्लैश हुए हैं, देखते हैं कि आप लोगों ने सही किया कि रॉन्ग किया। राइट गाइज, तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स मेनी टाइम इन द क्लासरूम। राइट, तो मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जिसमें कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ द प्रिज्म टू बी इक्वल टू द रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी यहाँ पर आपको मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म यानी डेल्टा मिनिमम का जो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपको दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन। एंड आगे बोला हुआ है द प्रिज्म मस्ट बी मेड अप ऑफ द मटेरियल एंड यू नीड टू कॉमेंट ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। सो आप जानते हैं कि जो डेविएशन जो मिनिमम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, what would the formula of minimum deviation। तो जो लोग भूल गए हैं उनके लिए पूरा बताता हूँ। आपको याद होगा हमने डेविएशन बताया था आपको I प्लस E माइनस ए होता है, एंड इन द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E बन जाता है। जब I इज इक्वल टू E बन जाएगा तो मिनिमम डेविएशन का वैल्यू आता है गाइस 2I माइनस ए। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट वुड हैपन, A is equal to 2I minus A, so finally I can write that I is equal to A। So what I can say, in this situation the angle of incidence is equal to the prism angle। Always remember whenever they say about the refracting angle of prism, refracting angle is nothing, it's just a prism angle, ठीक है। So guys, I is equal to A हमारे पास में आ गया है। Now you need to comment on the refractive index। As I taught you in the classroom also guys, जो minimum deviation के questions होते हैं they are the most easiest question, क्योंकि now in these questions we have freedom to do anything, because हमारे पास में क्या होता है in the case of minimum deviation ये जो ray अंदर वाली होती है that become parallel with the base। जब ऐसा होगा तो उस केस में गाइज हम जानते हैं ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल होगा तो ये वाला एंगल जो बनेगा आपका वो प्रिज्म एंगल का हाफ बन जाएगा।
and here I is equal to A. So if I, and let's suppose its refractive index is mu. So if I apply the Snell's law over here, then what I can write, 1 into sine I is equals to 1 into sine I is equals to the mu into sine A by 2. I can write this, right? Or I can also write I is equal to A. That's why sine A. So if I apply the half angle rule, then I can write mu sine A by 2 is equal to the 2 sine A by 2 cos A by 2. So sine A by 2 से sine A by 2 cancel out हो गया. So what you would have, mu is equal to 2 cos A by 2. Right guys, ये हमारे पास में एक रिलेशनशिप निकल के आ गई है. Now we know that I is equal to A. So what I can say that mu is also equal to 2 cos I by 2. Now we know that the range of the angle of incidence is always more than or equals to 0 and less than equal to 90 degree. So this range is from 0 to 90 degree. Angle of incidence cannot be more than 90 degree. So what you can do, if you substitute the I is equal to 0 over here, if you substitute the I is equal to 0 over here, then what you would have, you have mu is equal to 2 cos 0. So mu has value in that case 2. On the other hand, if you substitute the value of mu, maximum value of I, that is 90 degree, then you would have mu is equal to 2 cos 45 degree. Then in that case, mu would be equal to root 2. So now we have the two values of mu. One is root 2 and another one is 2. ठीक है. अब जो भी बाकी values lie करेगी, all values would lie between them. That's why in this question, our answer would be between 2 and root 2. Whatever be the value of refractive index between 2 and root 2, that can be the refractive index of this prism, right, under the given conditions. So this would be our answer. So I hope आपको clear हो गया होगा. Let's देखते हैं कि अब आप लोगों ने क्या आंसर किया था. मीमांसा हेलिक्स सर, आपका दोनों वीडियो के क्वेश्चन enough for this topic. Guys, I'm not saying कि they are enough for this topic. Enough तो कुछ होता नहीं है, but हाँ, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि न मामा से तो काना मामा भी अच्छा होता है. ठीक है. So if you're nothing, then something is better than nothing. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि they are something. देखो, कुछ भी नहीं होने से तो बेटर है, राइट. सो गाइज, मैं आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन देने वाला हूँ. ठीक है. अभी हम इस पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम वे ऑप्टिक्स पे बात करेंगे, फिर एसएसएम वेव पे बात करेंगे, फिर मॉडर्न पे बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पे बात करेंगे, फिर हम एसी पे बात करेंगे. तो हम सब पे बात करने वाले हैं. ठीक है. तो सबके आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मिलते जाएंगे. एंड अगर इस सीरीज में, इस यूट्यूब सीरीज से अगर आप मान लेते हैं 20 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं, तो दैट वुड बी द वेरी गुड थिंग फॉर यू, है ना. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है. जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. ट्राई इट. मॉडर्न फिजिक्स पहले ले लो सर प्लीज़. आपकी मैं रिक्वेस्ट को जरूर से एक्सेप्ट करूँगा निशांत. आई विल टेक द मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. यू जस्ट ट्यून इन दिस चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें. बुरे कमेंट वाले लोग तो बहुत इस दुनिया में पाए जाते हैं. दे आर फुल ऑफ द नेगेटिविटी. ठीक है, उनको अवॉइड करें. ओके. ट्राई दिस क्वेश्चन. कुछ टाइम पहले हम लोग फिजिकली मिलते थे. नाउ दिस कोविड हैज चेंज द कंप्लीट सिनेरियो. नाउ वी आर मीटिंग ऑन यूट्यूब, राइट. सो द थिंग्स आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग. चलिए गाइस, नाउ माय टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस. मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, राइट. ओके. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को देखिए गाइस. एक मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई भी इस टाइप का
एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ ट्राई टू रन दोज वीडियोस ऑन योर स्मार्ट टीवी। अगर आप पास में हो तो उस पर प्ले करने की कोशिश करें, या फिर आप अपने लैपटॉप पे प्ले करने की कोशिश करें और कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठें। राइट, इसमें दिया हुआ है द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, यानी आपको ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी हुई है और आपको आईपीस की फोकल लेंथ दी हुई है, यानी आपको एफओ एंड एफई दिया हुआ है। To view an object 200 centimeter away from the objective, what we need to do? We need to view the object which is 200 centimeter away from the objective. The lens must be separated by a distance. You need to find out by what distance lenses are separated in that case. So guys, as I taught you in the classroom also, जिन लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया है वो लोग भी इस बात को सोचिए। The use of telescope is to watch the celestial objects। ठीक है, हमारा इसका काम होता है celestial objects को देखना। So what we want to do? We want to observe the things which are far away from us. But what we are doing here, we are trying to observe the thing which is just 200 centimeter away. And always remember, whenever we use the instrument outside its user manual, whenever we use the instrument outside its user manual, in that case that instrument become a basic combination of lenses. So it would act like the basic combination of lenses. There would not be any formula of the telescope work over here, because the use of telescope to watch the celestial objects or the objects which are far away, at least few thousand kilometer away तो होना चाहिए, but this object is only 200 centimeter away. So we need to be careful कि यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई फॉर्मूला एक्ट नहीं करेगा। जब कोई फॉर्मूला एक्ट नहीं करेगा तो ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन बन गया गाइस, कि यहाँ पर तो ये हो गया कि आपको ऑब्जेक्टिव लेंस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यानी आपको यू दिया हुआ है, आपको एफ दिया हुआ है और आपको वी निकालना है। तो आप जानते हैं वी होता है यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। राइट, तो यहाँ पर अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -200, माइनस क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, f इज 40 डिवाइडेड बाय -200 प्लस 40, यानी आ जाएगा आपस में -160। तो ये आपके पास में निकल के आ जाएगा इस 50। सो v इज इक्वल टू प्लस 50 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बन रही होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही होगी। राइट, अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो आईपीस के थ्रू देखोगे, और इस क्वेश्चन में ये तो मेंशन ही नहीं है कि आपने फाइनल इमेज को कहाँ बनाया है। और हम जानते हैं कि जब ये मेंशन नहीं होता है कि फाइनल इमेज को हमने कहाँ पर बनाया है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल सेटिंग लेते हैं या फिर फाइनल इमेज को वी विल कंसीडर एट इन्फिनिटी। सो इफ वी कंसीडर द फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी देन ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट को आपको फोकस पे रखना पड़ेगा। सो गाइस द सिचुएशन इज व्हाट, कि आपने क्या किया कि दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, और आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज बन रही है दैट वुड बी एट दिस प्लेस at the distance of 50 centimeter. Now it is not mentioned in the question that what would be the position of the final image. तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है ये वाली डिस्टेंस आप एफ ई की इक्वल रखोगे। जैसे ही इस डिस्टेंस को आप एफ ई की इक्वल रखोगे जो कि 4 सेंटीमीटर की इक्वल है, तो आप पास में टोटल डिस्टेंस बन जाएगी गाइस 54 सेंटीमीटर। सो योर आंसर वुड बी व्हाट, 54 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन। अब देखते हैं कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया यूट्यूब के ऊपर। Lakshika has given the right answer, Venom has given the right answer, and Gayatri also gave the right answer. So guys, there are many guys जिन्होंने कि सही आंसर दिया है, ठीक है। गाइज अगर आप लोगों के कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप इस पे पोस्ट कर सकते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन को पूरा करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देने के बीच में आप लोगों से बात करूँगा। राइट, दिस इज़ द सेम इंटरेक्शन वे जैसे कि हम लोग क्लासरूम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
हम्म आसिफ इकबाल खान is saying hi sir, hi hello. ठीक है, चलिए गाइस, हाय हेलो से अब हम ऊपर उठते हैं, वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पर्सन कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400 सेंटीमीटर। तो भाई ये आदमी तो 50 से 400 सेंटीमीटर की तक की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, ठीक है, बाय थ्रू हिज आईज। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी, the type and the power of the correcting lens the person has to use. So this is a very interesting question guys. इस person को myopia भी हो गया है और hypometropia भी हो गया है, but he is not interested to remove the hypermetropia, ठीक है, इसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। What he want कि भैया मेरा तो myopia दूर हो जाए, ठीक है, केवल ये दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने करेक्टिव लेंस पहनना चाहता है। सो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो दूर की ऑब्जेक्ट को देखने पर है, पास की ऑब्जेक्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है कि पास में कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस बात है, पास में तो हम लोग बुक्स लेके ही पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। इसको लेना देना ये है कि भैया मुझे दूर की ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से दिखती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये केवल अपना मायोपिया दूर करना चाहता है। और हम जानते हैं मायोपिया में होता क्या है कि हमारी लेंस की पावर बढ़ जाती है, तो हमें लेंस की पावर को कम करना है तो हमें कॉन्केव लेंस पहनाना पड़ेगा। अगर कॉन्केव लेंस पहनाना है इसका मतलब या तो ऑप्शन जो आपका पहला ऑप्शन आएगा या फिर फोर्थ ऑप्शन आएगा। अब पहला आएगा कि फोर्थ आएगा, इसको हमें देखना है। तो इसको हमें देखना है तो ये पर्सन जो है अपनी नेकेड आइज से यानी विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये ऑलरेडी देख पा रहा है कहाँ तक, 400 सेंटीमीटर तक। अब आपको इसका विजन बढ़ा के इन्फिनिटी तक लेके जाना है, ठीक है। जब इन्फिनिटी तक आपको इसका विजन लेके जाना है तो अब आपको करना क्या होगा, देखिए भाई, दिस इज हिज आई लेंस, यहाँ सिलेरी मसल्स लगी हुई है, राइट, यहाँ पर है ये आपका इसका आई बॉल, ठीक है। अब हो क्या रहा है गाइस, जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, इसकी आई की पावर बढ़ने की वजह से ये लाइट रेज पहले ही चली जा रही है, पहले ही मर्ज हो गई है, राइट। लेकिन ये पर्सन जो है वो 400 सेंटीमीटर तक तो क्लियरली देख पा रहा है। अब हमसे बोला है कि इस पर्सन को कौन सा लेंस पहनाना चाहिए, तो हम चाहते हैं कि ये रेज यहाँ से जो पॉइंट यहाँ बना है यहाँ से शिफ्ट हो जाए रेटाइना पे, तो हम इसको रेटाइना पे शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है हमें इसको जो पावर इसकी बड़ी हुई है उस पावर को कम करना है, तो हमें इस पर्सन को पहनाना पड़ेगा एक कॉन्केव लेंस। सो वी नीड टू सजेस्ट हिम टू वियर द कॉन्केव लेंस। नाउ जैसे ही कॉन्केव लेंस ये पर्सन पहनेगा तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट सबसे पहले इसके लेंस पे गिरने वाली है। सो दीज लाइट्स आर गोइंग टू फर्स्ट फॉल ऑन हिज लेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने लेंस को ऊपर रख लिया, अगर मैं लेंस को ऊपर रख लिया, आई एम मायोपिक, मैं बताता हूँ, मैं मायोपिक हूँ, मैंने अपने लेंस को ऊपर रख लिया अगर मैंने लेंस को ऊपर रख लिया और फिर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस की किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो उससे आने वाली लाइट डायरेक्ट मेरे आई पे गिर रही है और जो इमेज बन रही है वो रेटाइना से पहले बन रही है, तो मैं उसको क्लियरली नहीं देख पा रहा क्योंकि मुझे ब्लर इमेज बन रही है। सो व्हाट आई नीड टू डू, I need to reduce the power of my eyes. So उसके लिए मैं क्या करूँगा, I will wear a lens, मैं यहाँ पर एक लेंस को पहन लूँगा। जैसे ही मैं लेंस को पहनूंगा तो लेंस को पहनते ही क्या होगा, वो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट जो है वो सबसे पहले मेरे लेंस पे गिरेगी। अगर इन्फिनिटी से आने वाली लाइट सबसे पहले मेरे लेंस पे गिरेगी तो मेरे लेंस पे गिरने के लिए इसका मतलब ये हुआ पहले लेंस से कांटेक्ट में आई लाइट। सो इफ द लाइट इज फर्स्ट फॉलिंग ऑन द लेंस देन फॉर दिस लेंस द ऑब्जेक्ट वुड बी एट इन्फिनिटी, फॉर दिस लेंस द ऑब्जेक्ट वुड बी एट इन्फिनिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पर्सन ने जो लेंस पहना है इस लेंस के ऊपर जो लाइट गिरेगा दैट वुड बी फर्स्ट फॉल ऑन इट्स हिज लेंस। सो फॉर दिस लेंस व्हाट आई कैन से द u वुड बी इक्वल्स टू इंफिनिटी, u पता लग गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v। तो दिस लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, इसका काम है लाइट को डाइवर्ज करना। तो ये लाइट को इस टाइप से डाइवर्ज करेगा गाइज कि हमारा जो आई का लेंस है उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है ये 400 सेंटीमीटर से आ रही है। अगर हमारी आई को 400 सेंटीमीटर से आने वाली लाइट मिल जाएगी तो हमारी आईज ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगी और रेटाइना पे मिला देगी।
यानी इस पर्सन के लिए, यानी इस लेंस के लिए बात करो आप, तो फॉर दिस लेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी एट इन्फिनिटी एंड फॉर दिस लेंस द इमेज वुड बी एट दिस प्लेस. सो व्हाट आई कैन से, करेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनेगा दैट वुड बी एट द डिस्टेंस ऑफ 400 सेंटीमीटर. सो v would be equal to 400 centimeter. So now we have the value of u, we have the value of v. If we apply the lens maker formula, तो हमारे पास में आ जाएगा f का वैल्यू यहाँ से 400 सेंटीमीटर. तो पावर का वैल्यू निकालेंगे तो आप पास में पावर का वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 400. यहाँ पर हम लोग नेगेटिव इसकी जो फोकल लेंथ होगी दैट वुड बी नेगेटिव, तो माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास पावर का वैल्यू हो जाएगा -0.25 डायोप्टर. तो इस पर्सन को हमें 0.25 डायोप्टर का एक कॉन्केव लेंस पहनाना चाहिए. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. किसी को कोई डाउट रहा हो, कुछ बात हो, तो यू कैन पुट दोज डाउट ऑन द चैट बॉक्स. सो गाइज अब मैं आपके कुछ डाउट और ले लेता हूँ जो चैट पे आपने लिखे हों. इससे पहले जिन लोगों को डाउट नहीं है उन लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर फ्लैश हो गया गाइज. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इन दिस द focal length of objective lens is 7 millimeter, focal length of eyepiece is 20 millimeter, and the distance between the lenses is 20 centimeter. If the image is formed at the least distance of distinct vision, then you need to find out the magnifying power. Image is formed at the least distance of distinct vision. So guys, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, राइट. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको जो भी डेटा दिए हों, सबसे पहले आप डेटा को समझ लो कि डेटा है क्या, फिर आप प्रोसीड करना स्टार्ट करो. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए गाइस, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में FO दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है. आपको यहाँ पर FE दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, and the separation between these two lenses is 20 सेंटीमीटर, राइट. और इन्होंने ये बोला हुआ है कि द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. इट मीन्स द फाइनल इमेज वुड बी एट दिस प्लेस. यहाँ पर कहीं पर बन रहा होगा गाइज आपका फाइनल इमेज. और आपको याद होगा कि जो फाइनल इमेज बनती हैं, उस इमेज को बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइनल इमेज को, वो आती है आपके आई पीस पर. सो बेसिकली दैट वुड बी द इमेज ऑफ आई पीस. If it is the image of eyepiece, in that case, this distance 25 centimeter would play the role of V. तो ये VE का रोल प्ले करेगा. So now guys, we have the value of VE, we have the value of FE. तो हमारे पास में FE का वैल्यू भी है, VE का वैल्यू भी है. By the calculation, what we can do, we can find out the value of UE कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा. आप जानते हैं यहाँ होगा ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस, और ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस होता है गाइज, बेसिकली ये होता है इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. सो दिस ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस वुड बी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. सो व्हाट आई कैन से, दिस इज VO. कोई मुझसे पूछे VO कितना होगा तो मैं बहुत इजीली बोल दूंगा कि VO हो जाएगा मेरे पास में कितना, 20. द टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, 20 माइनस ऑफ UE. ये मेरे पास में VO आ जाएगा. अब मैग्नीफाइंग पावर बारे में बात करें तो मैग्नीफाइंग पावर MPD का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, MO इंटू 1 प्लस D बाई FE. अब 1 तो बचपन से याद है हमको, D बड़े होने पता लग गया, FE क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ये तो सब पता है. एक्सक्यूज मी, ठीक है. अब अगर कैसे भी करके हमें MO पता लग जाए तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाए. तो MO को पता लगाने के लिए वी नो द फॉर्मूला MO is equal to FO minus VO upon FO into 1 plus D by FE. तो अब FO भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, VO मैंने निकाल ही लिया है यहाँ पर, ठीक है. सो जब
इन सब की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा, देन माई आंसर वुड बी 337। गाइज मैंने इसकी कैलकुलेशन इसलिए नहीं शो करी क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, प्लस ये वाला क्वेश्चन जो है एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप जानते हैं एम्स के क्वेश्चन में कैलकुलेटर अलाउ होता था, राइट। सो यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग द कैलकुलेटर ऑल्सो। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूँ, आप लोगों ने कोई क्वेरी वगैरह डाली हुई है चैट बॉक्स पर, तो मैं उस क्वेरी को ले लेता हूँ, ठीक है। Lakshika is saying clear sir, good. Venom is saying good problem approx 337, right बेटा, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप वहां से आंसर करिए, मतलब सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके सो गाइज आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करके बताता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने क्लासरूम में थाउजेंड्स ऑफ टाइम स्टूडेंट के साथ डिस्कस किया है, हर क्लास में इसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहता था, राइट। तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। इस क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर नॉर्मल आई द कॉर्निया ऑफ आई प्रोवाइड्स अ पावर ऑफ 40 डायोप्टर। कॉर्निया इज प्रोवाइडिंग द पावर ऑफ 40 डायोप्टर, right, and the least converging power of the lens behind the cornea is given as 20 diopter. By using this information you need to find out the distance between retina and the cornea eye lens, right, and that is approximate distance आपको यहाँ पर निकाल के बतानी है। आपको याद होगा कि हमने व्हेन वी वर टेकिंग द क्लासेस तो आपको बोला था कि हमारा जो कॉर्निया होता है, दैट कॉर्निया इज हैविंग सम फिक्स पावर, एंड दैट पावर इज अराउंड 70% ऑफ द टोटल पावर ऑफ द लेंस। सो आर कॉर्निया इज हैविंग द फिक्स पावर, एंड our eye lens that is behind the cornea is having power of accommodation by which it can increase or decrease the power. So in this question it is given that the least power of that eye lens behind the cornea is 20 diopter. So what I can say guys कि यहाँ सीन क्या है कि this is your eye lens, ठीक है, और ये रहा आपका आई बॉल। एक्सक्यूज मी फॉर माई डायग्राम, माई डायग्राम्स आर नॉट दैट मच गुड, राइट, एंड दिस इज द कॉर्निया, ठीक है, एंड दिस कॉर्निया इज ऑलवेज हैविंग द फिक्स पावर, एंड दिस पावर इज गिवन एज 40 डायोप्टर, एंड दिस आई लेंस इज हैविंग फ्लेक्सिबल पावर और accommodative power, and it is given that its minimum accommodative power is 20 diopter, right. So what I can say कि one thing is fixed, that is 40 diopter, another one can be variable. In that variable thing the minimum is 20 diopter. So in total what I can say, for this combination of two lenses, for this combination of lens, what I can say, the minimum power of this combination is equals to the 40 plus 20, that is 60 diopter, that is the minimum power. और आपको याद होगा मैं काफ़ी बार बोला हूँ कि हमारी आईज पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जब पड़ता है जब हम पास की ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं। जब हम पास की ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो हमारी आईज पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, और जब हम चांद सितारे देख रहे होते हैं तो हमारी आईज पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है, क्योंकि उस केस में आर आईज आर हैविंग द मिनिमम पावर। So guys, what I can say कि when the power of the eye is minimum, in that case we'll observe the objects which are far away. So the objects which are at infinity उनको हम observe करेंगे, और हम जानते हैं infinity से आने वाली लाइट जब इस combination of lenses के ऊपर fall होगा जो कि convex lens है, then it would meet at the focus. तो अगर इस person को देखना है तो इनको focus में मिलना पड़ेगा, और जो इसकी focal length बनेगी वही इस eyeball की size बन जाएगी।
अब आपको पावर पता है और फोकल लेंथ निकालना है, तो आप जानते हैं फोकल लेंथ इज 100/60, सो दैट वुड बी 5/3, तो आपकी जो पावर आएगी दैट वुड बी अप्रॉक्स 1.67 सेंटीमीटर. Okay guys, so this is about the question which is relates to your cornea as well as eye lens. So I hope आपको ये question clear हो गया होगा. Before I move to the next question, again I'll take your few chats if they are available. So the next question is flashing on your screen. This is one of the popular question once again. इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट बहुत बार पूछे हैं. आप लोग इस क्वेश्चन को करिए जितने मैं देखता हूँ कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द चैट बॉक्स. Venom and Helix, they have give the right answer. Mimansha and Gayatri, आपने थोड़ा wrong कर दिया बेटा. Lakshika is saying right, forgot to solve this at first. Thanks for putting this question, sir. You are most welcome, Lakshika. I'm putting these questions just for you guys, to help you guys. But आजकल हो क्या गया है guys, the content is so much available. हमारे टाइम पे क्या होता था, कंटेंट, द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट वाज वेरी लेस. बट आजकल क्या हो रहा है, द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट इज सो हाई कि स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि किसको पढ़ें किसको छोड़ें. सो दैट इज द टाइम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ दिस 2020 एरा, राइट. So I have a few answers flashing on my chat box. Before I move forward, let me discuss and explain the question. In this question, it is given that a microscope is focused on a mark on a piece of paper, and then a slab of thickness 3 centimeter and refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope move to get the mark the focus again? So guys, अब इसमें हुआ क्या कि हमें माइक्रोस्कोप को मूव करने की रिक्वायरमेंट हुई. We need to understand this thing first, right? Then we can easily solve this question. So guys, the situation is this. Let's suppose this is a piece of paper, and this piece of paper there is a mark. यहाँ पे कोई mark हो रहा है, and हमने क्या किया, we put a slab of glass, and that slab has a refractive index 1.5, and the thickness of this slab is given in the question as 3 centimeter. तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर किसी को भी रखेंगे तो उस केस में होगा क्या गाइस, यहाँ से देखने पर इसका नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा. देयर वुड बी सम नॉर्मल शिफ्ट, और हम जानते हैं नॉर्मल शिफ्ट हैज़ वैल्यू थिकनेस t इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, दैट इज 3/2. सो हमारे पास में यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. So there would be a normal shift of 1 centimeter. 1 centimeter normal shift होने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो आपका स्पॉट है वो यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर की तरफ चला जाएगा. कितना ऊपर चला जाएगा, 1 सेंटीमीटर. सो दैट लेटर शिफ्ट बाय द 1 सेंटीमीटर. यानी अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे A लिया हुआ है, तो A यहाँ 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. जब A 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा गाइस, तो होगा क्या कि पहले आपने मान लेते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, और ये माइक्रोस्कोप इनिशियली इस पॉइंट पर फोकस था, ठीक है. लेकिन आपने क्या किया, स्लैब को रखा. तो स्लैब को रखने से क्या हुआ कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया 1 सेंटीमीटर. अब आप बोलेंगे ऊपर की तरफ ही क्यों शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं हुआ. तो इसके लिए आपको थ्योरी पता होगी कि जब भी हम कोई स्लैब रखते हैं तो शिफ्ट जो होता है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होता है, अगर स्लैब का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज़्यादा हो तो. सो गाइज इस वजह से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है. तो जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो अब ऑब्जेक्ट तो ये रहा नहीं है, ये तो हो गया आपका पुराना ऑब्जेक्ट. ये हुआ आपका पुराना ऑब्जेक्ट. सो दैट वाज योर ओल्ड ऑब्जेक्ट. ये बन गया आपका नया ऑब्जेक्ट. सो दिस इज योर न्यू ऑब्जेक्ट.
right? So you need to shift this microscope upward by 1 centimeter, because now the object is shifted by 1 centimeter. Then to refocus without changing the setting of the microscope, you need to shift the microscope also by the 1 centimeter. If you do this, then again that object would be refocused. So your answer would be 1 centimeter. I hope आपको ये clear हो गया होगा. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, let me take फ्यू मोर क्वेश्चंस अगर कहीं पर हैं तो. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मैंने आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर दिया है. इस क्वेश्चन को आप रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. वेरी गुड गाइज. Many students have given the right answer and this is amazing. और अमेजिंग तो ये भी है यार, आप रात को 10 बजे तक है ना जगे हुए हो. मुझे याद है कि जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था तो मैं 9 बजे के आसपास सो जाया करता था. इनफैक्ट मैं अभी भी 9-10 बजे के आसपास ही सो जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज इससे आगे जगना मतलब मेरी बॉडी में बना ही नहीं है. इनफैक्ट यू कैन फील दिस थिंग कि मेरी आईज में अभी से नींद आ रही है, ठीक है. सो गाइस, रूटीन शुड बी लाइक दैट कि दिन भर हार्ड वर्क करो, बट व्हेन इट कम व्हेन टाइम टू गो टू द बेड, जैसे ही आपका आ जाए बेड पे जाने का टाइम, तो फटाफट वहाँ पे पहुँच जाओ, है ना. मिनिमम 7-8 आवर की आप स्लीप लो ही सही, तभी आपका नेक्स्ट डे अच्छा जाता है. सो गाइज, आई अंडरस्टैंड आप सब लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं कि आप इस टाइम पर भी जगे हुए हैं, लाइव हैं. अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भी लाइव नहीं हैं, बट जब कल सुबह होगा और मैं इसको देखूंगा तो देयर वुड बी द थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, ठीक है. इसका मतलब वो रात तक में देखेंगे, राइट. चलिए. सो गाइज, कुछ आंसर्स मेरे सामने फ्लैश हो रहे हैं. बिफोर टेकिंग दोज आंसर्स और before verifying those answers, let me read the question. So in this question, the magnifying power of the telescope is given as 9, ठीक है, for the parallel rays, ठीक है. When it is adjusted for the parallel rays, the distance between the object and the eyepiece is 20 centimeter and the focal length of lenses. So guys, in this question it is given that the magnifying power of this combination of the lenses or telescope is 9, right? And the for the parallel rays, it means the image is formed is at infinity, object is at infinity, image is also formed at infinity. And we know that the magnifying power of the telescope when the image is at infinity is minus FO upon FE. So here FO has value, FO and FE are not given, but magnifying power is given. So what I can say, FO is equal to 9 times of FE. I know one more thing, in under the normal setting or the setting when the final image is in infinity, then the tube length is FO plus FE. So in this situation, the tube length would be equal to FO plus FE. So what I can say, tube length is FO plus FE, and tube length is given as 20 centimeter. So and FO is 9 times of FE. So that would be the 10 times of FE. So 10 times of FE is 20. So FE would be equals to 2 centimeter, and the remaining would be the FO. So your answer goes to this one. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना guys? Guys, is it clear? Is it making sense or not? Okay guys, before taking the next comments, I'll give you the next question. This is also one of the question which I solved many time in my classroom, right? तो आप लोग ready हो जाओ इस question को solve करने के लिए guys. अब मैं next कुछ comments ले लेता हूँ. गायत्री ने राइट आंसर दिया था, विक्रम ने राइट आंसर दिया था, ठीक है. वेरी गुड गाइज, वेरी गुड. वेर इज वेनम, वेनम ने भी राइट आंसर दिया था. हेलिक्स आंसर नहीं कर रहे हैं. बाकी लोग भी आंसर करो भाई. नींद आने लग गई क्या आप लोगों को?
चलिए गाइस, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा. नाउ माय टर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ somebody is saying hello very passionately and he is अभिषेक कुमार. एंड अभिषेक, हेलो हेलो, आपने बहुत ही हेलो बोला है. देर मस्ट बी समथिंग वेरी अर्जेंट, इसलिए आप इतनी बार मुझे पिंग की हैं. तो आओ कभी आपको बताते हैं. राइट, चलिए. सो गाइज, in this question, what is given that the refracting angle of a prism is A and refractive index of prism is mu cot theta, and you need to find out the value of the minimum deviation of this prism. Right. अब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको इन इन्फॉर्मेशन से प्रोसीड करना स्टार्ट करिए. तो देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइस कि मिनिमम डेविएशन है, और हम जानते हैं कि इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन जैसे ही देखें तो हमारे फेस पर स्माइल आ जानी चाहिए. बिकॉज इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, वी हैव ऑल द राइट टू डू एनीथिंग. दैट्स वाई हमारे चेहरे पर इसमें एक मुस्कान आ जानी चाहिए कि हाँ हाँ मज़ा आ गया, इसमें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. राइट. सो गाइस, आप देखिए यहाँ पर मिनिमम डेविएशन है, लाइट यहाँ पे फॉल हुई, और हम जानते हैं इन द केस ऑफ मिनिमम डेविएशन दिस वुड बी पैरेलल विद द बेस. सो लाइट ऐसे जाएगी. इफ आई ड्रॉ अ नॉर्मल ओवर हियर, in case of minimum deviation this would be a by 2, and this is your angle of incidence, right? And I need to find out the minimum deviation, and I know that the value of minimum deviation is 2i minus a. अब कैसे भी करके 2i आ जाए या फिर i आ जाए तो मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाए. सो माई टारगेट इज़ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i ओवर हियर. मुझे यहाँ पर i की वैल्यू को निकालना मेरा टारगेट है. अब i की वैल्यू को कैसे मैं निकालूं, तो उसके लिए मुझे दिया हुआ है कि द म्यू हैज़ वैल्यू cot a by 2. So if I apply the Snell's law over here, if I apply the Snell's law over here, then what I can write, 1 into sine I is equals to mu into sine a by 2. I can write this, or I can also write it as mu has value cot a by 2. Cot a by 2 is basically cos a by 2 divided by sine a by 2 into sine a by 2. So sine a by 2 तो कैंसिल आउट हो गया. अब मेरे पास में आया कितना, cos a by 2. I can write the cos a by 2 as sine 90 degree plus minus a by 2. So that would be the 90 degree plus minus a by 2, that is equals to the sine I. Or I can also say that this I is equal to 90 degree plus minus a by 2. So now I have two angle of incidence, 90 degree plus a by 2 and 90 degree minus a by 2. And we know that the angle of incidence cannot be more than 90 degree. There is no significance of the angle of incidence more than 90 degree. So that is not possible. So if the 90 degree is not possible, more than 90 degree is not possible, then I can write 90 I is equal to 90 minus a by 2. So if I need to find out the minimum deviation, then I know that minimum deviation is 2i minus a. So if I substitute the value over here, so 2 times of 90 degree minus a by 2 minus of a. So my answer would be 180 degree minus 2a, and 180 degree minus 2a would be your first option. So that would be your answer, guys. Is it clear, guys? चलिए, अब हम लोग आपके वापस से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. नाउ आवर टाइम इज़ अबाउट टू फिनिश. सो अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, देन वापस से हम फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. मैं आपको बताता हूँ, द नेक्स्ट टाइम वुड बी द टुडे इज़ द मंडे. माय नेक्स्ट यूट्यूब सेशन वुड बी ऑन द फ्राइडे को आई टॉक अबाउट द YDSC और उसके क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा मैं फ्राइडे को. फिर जो अगला सेशन आएगा मंडे को, उसमें मैं डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस और उसके बारे में बात करूंगा. राइट. सो 2 सेशन का मैंने आपको बता दिया है. इन द मीन वाइल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो. इतने सारे फालतू आप ऐप डाउनलोड करते हैं जिसमें कि आप हेलो, टिंडा, लीची, पता नहीं कौन कौन से ऐप डाउनलोड करके अपने फ़ोन को भर के रखते हैं, है ना. एक एजुकेशनल ऐप भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. डाउनलोडिंग का पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है. सो
डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, वहाँ पे मेरा नाम सर्च करो, शैलेंद्र सिंह राजावत, ठीक है। गो टू दैट प्लेस और जाके वहाँ मुझे फॉलो करो, और फॉलो करने के बाद में आप उसमें जो भी मेरी क्लासेस होगी उनका नोटिफिकेशन ले लो, राइट। तो जब भी क्लास आएगी, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, मान लेते हैं, ठीक है, वैसे तो मैं जैसे आप एक दो क्लास देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दिस इज बेस्ट, तो यू वुड टेक, आई एम 100% श्योर यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन। नहीं भी लेना तो फ्री में देख लो भाई, ठीक है। सो दैट इज अवेलेबल फॉर यू। सो गाइज, वन मोर इन्फॉर्मेशन आई हैव फॉर यू। आई एम मैं तो क्वेश्चन तो बहुत सारे लेके चलता हूँ, बट टाइम हमेशा कम पड़ जाता है गाइस, जबकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अब देखिए, आई स्टार्टेड एट 9 o'clock एंड कंटिन्यूसली हम लेके चल रहे हैं, नॉट लाइक द अदर यूट्यूबर्स के हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, राइट। एक और चीज़ गाइस देखिए यहाँ पे कि आप वहाँ जब जाएं तो ये भी आप काम कर लें कि आप टेलीग्राम पर, डोंट फॉरगेट दिस, अभी के अभी करो, सब लोग अपना अपना फ़ोन निकालो, ठीक है, उसमें टेलीग्राम खोलो और टेलीग्राम के सर्च में जाओ, और सर्च में जाके वहाँ पर टाइप करो SSR_physics, वहाँ पर टाइप करो SSR_physics, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लो, इसको आप ज्वाइन कर लो। जो भी मेरी फ्री क्लास होगी, मेरी प्लस क्लास होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से पता लगाते रहेंगे कि मेरी क्लासेस कब है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, मेरी कल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक फ्री क्लास है, स्पेशल क्लास है, शाम को 4 बजे, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेरी रात को 8 बजे रेडियो एक्टिविटी पे फ्री क्लास है, जिसमें मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आप उनको करो, ठीक है। सो दैट वुड बी द बेस्ट वे गाइस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे फ्राइडे को, तब तक आप सेफ रहिए, मास्क पहनिए, अपने फैमिली को बोलिए पूरी सेफ्टी रखिए, ठीक है, और अच्छे से रहिए। तो ऐसा नहीं कि कोविड का फियर आप कम कर दें और ऐसे ही घूमना शुरू कर दें। दिस इज़ द हाई टाइम फॉर आवर कंट्री। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और सोइए। चलिए, गुड नाइट एवरीबडी, थैंक यू।